Hello students, once again all of you are welcomed in online classes done by Sushil sir. I am your own Sushil sir and now I am going to teach you part 3 of the sequence videos. Students, question 11. Add 14, 35 and 66 by grouping in as many ways as you can. Write property also. This means स्टूडेंट्स 14, 35 और 66 को जितना पॉसिबल समूहों में हो सके करके आप ऐड कीजिए और फिर प्रॉपर्टी का नाम भी लिखिए कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है. तो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया है. आंसर फर्स्ट पे हमने यहाँ पे लिया 14 प्लस इन ब्रैकेट 35 प्लस 66 इक्वल्स 14 प्लस 101 इक्वल्स 115. स्टूडेंट्स सेकेंड पॉसिबल वे, अगर हम 14 और 35 को टुगेदर ऐड कर लें तो एक ब्रैकेट हमने लगाया है 14 प्लस 35 ब्रैकेट क्लोज प्लस 66 इक्वल्स द सम ऑफ 14 एंड 35 49 प्लस 66 equals 115. And third way 35 plus I have make collection of 66 and 14 and the operator of plus shows that you have to make operation of addition equals 35 plus 80 equals 114. Thus students, but sum of these three numbers 14, 35 and 66 equals 115. Sum equals 115 and property all of you are familiar already that the property used in all the three questions is associative property. Students, question number 12. Find the dividend when quotient is 24,673, divisor is 46 and remainder is 17. Students, as all of you have been taught in earlier classes how to find any part out of 4 in a division question. Students, we know that dividend A equals divisor B multiplied by quotient Q plus remainder R. Students, it is given in higher class, in class 10th by name lemma. So students, A equal BQ plus R, it is taken from Euclid's division lemma, so that dividend equals 46 multiplied by 24,673 plus 17, or dividend equals the product of 46 and 24,673 equals 11 log 34,958 plus 17, or dividend equals the sum of 11 log 34,958 and 17 equals 11 log 34,975. Thus students, your answer is 11 log 34,975. In question number 13, write the smallest prime number. Very simple questions you are asked in class 7th. The smallest prime number is 2. It is known for all, but it is more important to know for us that 2 is the smallest and only prime number that is even also. Students, no other prime number except 2 can be even. 2 को छोड़कर कोई भी और प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है जो इवन भी हो सम भी हो. फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द LCM ऑफ, हमें 4 पार्ट्स में दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं LCM के. फर्स्ट पार्ट में है 24, 120 एंड 300. सेकेंड में है 196, 980 एंड 49. पार्ट थर्ड में आपको दिया गया है
172, 688, 1032। स्टूडेंट्स, आप एलसीएम इसके पहले भी सॉल्व किए हैं, क्लास 4 से एलसीएम बताया जाता है आपको। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक भी क्वेश्चन इसमें से आपके सॉल्व नहीं करेंगे, और लिखा हुआ होमवर्क सॉल्व ऑल बाय योरसेल्फ, तो सारे एलसीएम ऑफ सेल्फ निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ पार्ट 1 11, तो 11 के आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। सेकेंड पार्ट में दिया 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। थर्ड पार्ट में यू आर गिवन 9, you have to write first 5 multiples of 9, and in fourth part you are given 21. This means you have to write first 5 multiples of 21. In part 5 you have been given 25. This means you have to write first 5 multiples of 25. Students, I also have given homework solve first, second, third and fourth by yourself, and for your help I have solved fifth part. Students, part 5th 25. First 5 multiples of 25 equals 25 multiplied by 1, comma 25 multiplied by 2, comma 25 multiplied by 3, comma 25 multiplied by 4, comma 25 multiplied by 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे 5 हो गए, लेकिन अगर 6 पूछता तो आप 6 भी निकाल सकते थे, सो ऑन, एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हमने इसमें 6 निकाल दिया, जबकि हमसे पूछा गया था केवल 5। तो ये हमारा आता है 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 5 125 एंड 25 6 150। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल गया? हमें 6 मल्टीपल्स मिल गए, जबकि हमें केवल 5 ही निकालने थे। तो आई होप दैट द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस यू कैन डू योरसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर बॉडी। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1614 and 2077, leaving a remainder of 4 and 7 respectively। स्टूडेंट्स, आपसे कहा जा रहा है कि वह बड़े से बड़ी यानी वह ग्रेटेस्ट नंबर ज्ञात करो जिससे 1614 में डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचता है, अब अगर उसी नंबर से 2077 को डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर बचता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ, हमें HCF निकालना है किसका? 1614 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 4 रिमाइंडर देगा, तो 1614 माइनस 4 एंड 2077 माइनस 7। क्यों? क्योंकि इसके साथ 7 रिमाइंडर चाहिए। एक तो इक्वल्स स्टूडेंट HCF ऑफ यहाँ पे 1614 और 4 का डिफरेंस आया 1610, और 2077 और 7 का डिफरेंस आया 2070। तो स्टूडेंट्स, ये हमने साइड में आप देख रहे हैं, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है। तो हमने लार्जर नंबर 2070 को 1610 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर हमको मिला 460। फिर हमने 460 को जो डिवाइजर पहले लेते 1610 में डिवाइड किया, इसमें 3 टाइम गया है, रिमाइंडर मिला 230। फिर 230 से हमने डिवाइड कर दिया 460 को, 2 टाइम गया और रिमाइंडर मिल गया 0। और हम जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो लास्ट में जो भी नंबर हमें रिमाइंडर 0 देता है वही दिए गए नंबरों का HCF कहलाता है। 10 स्टूडेंट्स, HCF ऑफ 1610 एंड 2070 इक्वल्स 230। 10 रिक्वायर्ड HCF 230 और हमारा आंसर आ गया 230। स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आल्सो क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1800 इफ देयर LCM इज 300 देन फाइंड देयर HCF। स्टूडेंट्स, अगर 2 नंबर्स का स्टूडेंट्स 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया गया है और उन दोनों नंबरों का अगर LCM 300 है तो उनका HCF क्या होगा? तो एज वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट द HCF the product of 2 numbers is always equal to the product of their LCM and HCF। हम जानते हैं कि 2 नंबरों का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस मीन्स इफ वी हैव बीन गिवन 2 numbers A and B and their LCM and HCF are L and H, then
A into B equal to L into H. Using that property, we can find that we know that HCF of two numbers equal to product of two numbers divided by their LCM. By applying that property, HCF of two numbers equal to, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 1800 डिवाइड बाई 300, तो हमको क्या मिलता है 6. तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आता है HCF इक्वल टू 6. तो स्टूडेंट्स स्टडी करते रहिएगा और रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो. बी inside your home, be safe.